Well, so let's start with this lecture. Today we are just going to discuss about how to solve the paper and how should we be getting the above 90 marks in English paper. See, the question paper will be of the 80 marks and 20 marks will be given from your school, the practical marks. Okay, so let's consider that English is for 100 marks. Okay, and our target must be 95 or plus. Okay, yes, it is a very scoring subject. And remember, guys, math, science are the core subject. You have to be very good at that. But after all, math, science is only giving you 200 marks. Okay, but here languages in English, Hindi, Marathi, we are having 300 marks. Okay, so languages are the backbone. If you want to get maximum score in this examination, the 10th board examination, or in the 12th even, so the languages are the backbone. Okay, you are expected to take lot of marks in this paper, because what is happening, writing skill is there, so it is a very easy topic. Again, grammar is only for 18 to 20 marks in the paper or less than that. Again, the passages are given and you just have to use your presence of mind to answer the question. But the concern is what? Concern is about the here in all the languages paper. I'm not talking only about the English paper, but Hindi, Marathi, all these subjects are of 80 marks and time is given only 3 hours. Okay, not only I mean say, because it is more than enough. 3 hours is more than enough, but you must have the practice to solve this paper in that 3 hours. So don't consider that we have 3 hours, don't consider at all. हमेशा यही याद रखना है कि आपके पास सिर्फ 2.5 घंटा है, only 2.5 hours. Okay, and your whole paper must be completed in 2.5 hours. So this is the time management you have to do. Because what will happen कि अगर आपका 2.5 घंटे में पूरा पेपर हो जाता है, तो आधे घंटे में आपका जो क्वेश्चन छूट चुका है, जो ग्रामर आपने छोड़ा है, जो आपने पैसेज, अगर आप उसमें से कुछ एंटोनिम, सिनोनिम्स या फिर कुछ ग्रामर हो गया या फिर कुछ क्वेश्चंस हो गए जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए सॉल्व करते, तो उस आधे घंटे में आपका पेपर 2 बार चेक हो जाएगा and you will be satisfied with whatever you have written. Okay, so that is why you just have to consider that we have only 2.5 hours. ठीक है, सिर्फ 2.5 घंटे हमारे पास, ये पूरा 80 मार्क का पेपर हमें 2.5 घंटे में अटेम्प्ट करना है और पूरा के पूरा हर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अब क्या करता है बेसिकली, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम राइटिंग स्किल पहले अटेम्प्ट करें या ग्रामर पहले अटेम्प्ट करें या फिर पैसेज. सो डोंट डू दैट, जस्ट गो विद द क्वेश्चन नंबर एज इट इज़ गिवन इन द पेपर. सबसे पहले हमारा पेपर पैटर्न क्या होता है कि इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 इज बिलोंग्स टू द लैंग्वेज स्टडी. ओके, विच विल बी ऑफ 10 मार्क्स कंपल्सरी. ठीक है, एंड बाय लक it will be given some options ki any1 any2 from that. Okay, and after that there will be question number 1a or 2a. In that the passage will be given. Okay, and passage will be of 10 marks. ठीक है, so 10 or 15 marks it may come. So what time have been given? 15 minutes. 15 मिनट से कम में आपका एक पैसेज सॉल्व होना चाहिए. इफ़ इट इज़ एक्सीडिंग, अगर आपका 15 मिनट से ज़्यादा ले रहा है तो हमें क्या करना है, उसको वहीं पर छोड़ देना है. ठीक है, देखो 4 चीज़ें हैं. फर्स्ट है एक सीन पैसेज, दूसरा सीन पैसेज, ठीक है, तीसरा होता है एप्रिसिएशन ऑफ पोयम और चौथा होता है सीन पोयम. ठीक है, एक अनसीन पैसेज आई मीन. ठीक है, तो अनसीन. ठीक है, तो इन चारों को हमें 15-15 मिनट के डिवाइडेशन में करना है. 15 मिनट्स फॉर दिस एंड 15 मिनट्स फॉर दिस. ओके, सो इफ़ यू डिवाइड दिस तो अब 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे में अगर आपने ये चारों पोर्शन सॉल्व कर दिए, सो यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 50% ऑफ द पेपर. दैट्स इट, हो गया. अब बचा क्या है, ये देखो ना, ये लैंग्वेज स्टडी के 10 मार्क को अटेम्प्ट करने के लिए कितना मिनट आपको चाहिए? 10 मिनट इज़ मोर देन इनफ. ठीक है, अब कुछ चीज़ें नहीं आती. अब लैंग्वेज स्टडी जो होता है बहुत इजी होता है, इसमें आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस मिलेंगे. फॉर एग्जांपल वर्ड चेन तैयार करना है. अब वर्ड चेन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है क्लियरली. क्या होता है वर्ड चेन, मतलब कोई भी वर्ड, जैसे अंताक्षरी थोड़ी खेल रहे कि आखिरी जो वर्ड है उसको पढ़ा और कोई भी गाना बोल दिया, ऐसा नहीं होता है. अगर आपको उन्होंने बोला है कि मेक द वर्ड चेन ऑफ नाउन, तो वो सारे शब्द नाउन ही होने चाहिए. और उन्हें बोल दिया कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, तो अगर वर्ब बोल दिया तो सारे वर्ब्स होने चाहिए.
ठीक है, दैट इज द थिंग यू हैव टू मेंटेन द फोकस देयर। ओके, अगेन क्वेश्चन आता है फाइंड द इन्फिनेटिव। सो इन्फिनेटिव हमने बहुत बार आपको बताया क्या होता है इन्फिनेटिव, 2+v1 ये होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए टी डब्ल्यू ओ दे देते हैं वो लोग, या फिर टू हर दे देते हैं। तो ये टू हर हमारा इन्फिनेटिव हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नॉट। वाई? बिकॉज टू तो है, लेकिन उसके सामने ये जो वर्ड है वो वर्ब नहीं है, इट इज़ नॉट अ वर्ब, इट इज़ अ प्रोनाउन। सो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए, तो वो क्या है? इन्फिनिटी है। उसके बाद में हमने जीरंड देखा है, तो जीरंड क्या बोलते हैं? हम लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं और जिसके कारण हमारा ग्रामर क्या होता है वो रॉन्ग हो जाता है। अब जीरंड फॉर्म क्या होता है? जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं उसी को जीरंड फॉर्म बोलते हैं। उसके एक्चुअली 5 नाम होते हैं। ठीक है, V1 प्लस ING को ही हम लोग क्या बोलते हैं? V4 बोलते हैं, राइट? ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ING फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं जीरंड फॉर्म। दिस इज ऑल वन। ठीक है, सारे एक ही है ना? V1 प्लस ING वही V4 है, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वही ING फॉर्म है, वही जीरंड फॉर्म है। ये हमें पता ही नहीं है बच्चों को। अब क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल विच लास्ट लेटर इज डबल्ड। वो क्या बोल रहा है कि ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखो जिसका आखिरी का जो वर्ड होता है वो डबल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या है? V1 प्लस ING, और ऐसा वर्ड जिसको ING लगाने पे लास्ट लेटर डबल होता है। ऐसे कौन से? फॉर एग्जाम्पल रनिंग है, हम रन ये लिखते हैं लेकिन एन डबल हो जाता है ING लगाते समय। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, राइट? तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसका लास्ट लेटर क्या हो गया? डबल हो गया। ऐसे भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो 2 एग्जांपल बोला है, तो दूसरा हमने स्विमिंग लिख दिया। स्विमिंग का भी जो एम होता है वो डबल रिपीट हो जाता है। प्लानिंग हो जाता है, प्लानिंग का भी एन होता है वो डबल रिपीट हो गया। ठीक है, ऐसे सिली क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ये बेसिक आइडिया होना चाहिए, तब हम ये आराम से कर सकते हैं। अगेन विच सेंटेंस क्वेश्चंस आर देयर, हम लोग लैंग्वेज स्टडी का फुल अभी डिटेल देखते हैं। ठीक है, अगेन क्वेश्चंस आता है कि फाइंड द आइडेंटिफाई, फाइंड द वर्ब एंड आइडेंटिफाई द टेंस। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिफाई द वर्ब एंड नेम द टेंस। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेंटेंस दैट ही इज गिविंग अ पेन। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि इसमें वर्ब क्या है, तो बोलते हैं कि सर गिविंग ये वर्ब है। ओके, सो इट इज राइट, बट अगर हमने सिर्फ गिविंग बोल दिया तो सिर्फ गिविंग ये वर्ब हमें टेंस दिखाता है क्या? कौन सा है? अब टेंस बताइए कौन सा है? हमने क्या देखा? इज देखा, फिर ING देखा, तो हमें समझ में आया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसमें इज का भी तो रोल है ना, कि अगर हमने इज देखा ही नहीं, सिर्फ गिविंग बोल दिया, ठीक है, तो इससे दिख रहा है कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिर्फ कंटिन्यूअस दिख रहा है। कुठला कंटिन्यूअस, कौन सा कंटिन्यूअस है वो दिख ही नहीं रहा है। ओके, ऑब्वियसली। सो इज भी दिखाना है, तो हमें क्या लिखना है? और हम ना अंडरलाइन बिल्कुल मत करना है, लिखना है वर्ब इज गिविंग, ये वर्ब है हमारा, और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बरोबर होनी चाहिए, UOUS होता है टेंस। बस अगर ऐसा लिखोगे तो कोई आपका हाफ मार्क भी नहीं काट पाएगा, राइट? तो वर्ब अगर आपसे पूछा है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही बताना है कि दिस इज द वर्ब, और उसके बाद ये है हमारा टेंस। दिस इज वाई इन्फिनेटिव भी हम लोग लिखते हैं ना, तो डू नॉट अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस, बट राइट इन्फिनेटिव। आंसर में लिखना है इन्फिनेटिव, कोलन देना है और लिखना है टू गो, हो गया 2+V1। ठीक है, तो ऐसा आंसर हमें एक्सपेक्टेड है लिखने के लिए। क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं लिखना है, डू नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम इन राइटिंग द क्वेश्चंस। देखा है हमने बहुत से क्वेश्चंस पेपर में, आंसर पेपर में, कि लोग बच्चे राइटिंग स्किल का भी क्वेश्चन लिख रहे हैं। व्हाई? अननेसेसरी यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ज़रूरत ही नहीं है। अगेन पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, अब पर्सनल रिस्पॉन्स होता है 5 मार्क का, सॉरी 2 मार्क्स का, तो उसमें 5 से 6 लाइन लिखना एक्सपेक्टेड है। इतना बड़ा ऐसा लिखने की ज़रूरत है क्या? क्या होता है कि कुछ बच्चों को क्या होता है कि एक आधी इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया या फिर उनको नॉन टॉपिक आ गया, उनको उसके बारे में बहुत पता है, तो उनको लगता है कि मैं कितना लिखूँ, लिखते ही जाते हैं, बट आफ्टर एट द एंड आपको उतने ही मार्क मिलने वाले हैं, राइट? अभी हम लेटर की बात करते हैं, तो लेटर में क्या है? 3 पैराग्राफ बनाने हैं, तीनों बड़े लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला जो पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन का है, 3 से 4 लाइन मिनिमम हो जाता है। सेकंड पैराग्राफ में यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल, एंड थर्ड पैराग्राफ शुड बी कंक्लूजन विद द 2 और 3 लाइन, दैट्स इट। इतना ही लिखना है। लेटर में भी अगर उनका कुछ अच्छा टॉपिक मिल गया ना, तो उनको अगर माइंड में क्या थॉट्स आते रहते हैं, तो वो लोग सभी लिखते हैं।
उसको हमें कंट्रोल करना है। एक साइकोलॉजी में कंसेप्ट होता है मंकी टेक ओवर, है ना। लास्ट के 5 मिनट में मंकी हमारा टेक ओवर कर लेता है और इतना ज़्यादा हम लोग लिखते हैं एंड ऑल इट इज़ अननेसेसरी। तो उससे हमें बचना है, ठीक है। अगेन कम टू द पॉइंट, लैंग्वेज स्टडी में और कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी हो गया, आइडेंटिफाई द वर्ब एंड नेम आ गया, तो पैसिव वॉइस आ सकता है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस तो 101% आएगा कि एक टेंस दिया है, फॉर एग्जांपल यही सेंटेंस है, ठीक है, हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो यही सेंटेंस है, ही इज गिविंग अ पेन। अब क्या होगा कि इस ब्रैकेट में आएगा कि चेंज इनटू, इसको बोल दिया सिंपल प्रेजेंट में बोल दो, क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट, फिर उसका हमें कंस्ट्रक्शन याद होना चाहिए। क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब वन आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर एक्सटेंशन, यही है। लेकिन V1 को हम लोग क्या लगाते हैं, यस और यस लगाते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो इसका कैसे होगा, ही गिव्स अ पेन, ठीक है, हमने यस लगा दिया, क्यों लगा दिया, बिकॉज दिस इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। हमने सीखा है ही शी इट, और या फिर किसी अन्य व्यक्ति का सिंगुलर नाम आता है तो हम लोग वर्ब को यस यस लगाते हैं, राइट। तो ऐसे अगर सेंटेंसेस, ऐसे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लैंग्वेज स्टडी में 10 मार्क्स के लिए मिलेंगे। अगेन फ्रेज दिया जाता है कि यूज द गिवन फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस, दैट इज अगेन वेरी इजी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ दैट फ्रेज एंड यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, ओके। तो उसमें भी बहुत ईजी आते हैं, जैसे कि लुक आफ्टर, ठीक है, टेक केयर ऑफ, ठीक है, ऐसे इजी आते हैं। आप लोग अभी 2-3 साल के पेपर अगर देखते हो तो इजी आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में लैंग्वेज स्टडी इजी होता है। अब ग्रामर चैलेंजिंग कहाँ पर आता है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2A-B, क्वेश्चन नंबर 3A-B में देखोगे, पोएट्री, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, तो उसमें 2 मार्क के लिए ग्रामर होता है हर पैसेज में, वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। उसमें आपको इन्फिनिटी वगैरह बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस मिलेगा, ठीक है। उसमें मिलेगा आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आया तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, या फिर क्लॉजेस। तो ऐसे चैलेंजिंग ग्रामर है ना, वो पैसेज के अंदर है। तो हमने जब वीडियो ये लेक्चर शुरू किया था, उसमें मैंने शुरुआत में बोला था कि हमारा टारगेट है 95 प्लस। अब अगर आपको 95 प्लस का तो छोड़ दो, अगर आपको 90 के आसपास भी पहुंचना है ना, तो आपका जो ग्रामर है वही आपको यहाँ तक पहुँचा सकता है, ओके। सो ग्रामर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यही आपको 90 के आसपास भी बोल रहा हूँ मैं आपको, 85 के अबो भी जाना है तो आपको ग्रामर, क्यों, क्योंकि देखिए राइटिंग स्किल आप कर लेंगे, पैसेज पोएम आप कर लेंगे, लेकिन जो ग्रामर है वो होता है हमारा 18 से 20 मार्क का। तो अब 80 में से आप 18 से 20 मार्क पकड़ लो इसी के, तो आप लोग 90 तक कैसे जा पाओगे विदाउट द ग्रामर, राइट। और सिली मिस्टेक्स है, बिल्कुल नहीं करना है। यू हैव टू टेक द लॉट ऑफ प्रैक्टिस इफ यू हैव अंडरस्टूड एनी टॉपिक। अब देखो टेंस सबको समझ में आ गया कि कैसा होता है, प्रैक्टिस ही नहीं करते, लर्न ही नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों के लर्न ही नहीं, उनको 12 टेंस लर्न नहीं है, 8, 9, 10 के बच्चों को, ठीक है। सो इट इज़ द बेसिक ग्रामर, टेंस सबसे बेसिक होता है, इससे बेसिक और क्या ही होगा। तो टेंस हमें लर्न होना चाहिए, उसी की मदद से हमको पैसिव वॉइस भी आएगा, ठीक है। तो इसकी आप लोगों को रिवीजन करनी है, और जैसा मैंने बताया कि आपके पास है 3 आवर्स, बट यू डू नॉट हैव टू कंसिडर ऑल द 3 आवर्स, यू आर ओनली गिवन द 2.5 आवर्स, एंड इन दिस यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट द 80 मार्क्स क्वेश्चंस ऑल, ठीक है। तो क्या होना है, आप लोग 15-15 मिनट के लिए पैसेज डिवाइड कर दीजिए, मतलब आपका 1 घंटे में 4 पैसेजेस होना ही चाहिए कंप्लीट 1 घंटे में, ठीक है। वन आवर, 1 घंटे में 4 पैसेज, ठीक है। एक सीन, एक अनसीन, एक पोयम, एक एप्रिसिएशन, इतना अगर हो गया 15-15 मिनट में, उससे भी कम हो जाएगा। अगर आपका वो चैप्टर आपने अगर पढ़ा है ना, तो क्या होता है, आपको पैसेज देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आपको क्वेश्चन पढ़ते उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो उससे टाइम सेविंग हो जाता है, इसलिए टेक्स्ट बुक थोड़ा सा रीड करना ज़रूरी है हमें, ठीक है। तो वो हो गया, तो 1 घंटे से भी कम में, या 40 मिनट्स या मैक्सिमम 50 मिनट्स में आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं तो बोल रहा हूँ कि इस 1 घंटे में क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी भी हो जाना चाहिए, मतलब 50% ऑफ पेपर ख़त्म ही हो गया है। अभी बचा ही क्या है, अभी हमारे पास और 2 घंटे बाकी है, और सिर्फ राइटिंग स्किल बाकी है। और मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक राइटिंग स्किल के क्वेश्चन को सिर्फ 10 मिनट देने हैं। कितने मिनट, सिर्फ 10 मिनट्स। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है ना, तो क्या करना है, 4-5 लाइन छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए,
ठीक है, इससे क्या होगा, आपका 2.5 घंटे से भी पहले में पेपर होने के चांसेस है, नहीं तो 2.5 घंटे के तो आराम से पेपर हो जाएगा, एकदम आराम से। और उसके बाद में तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें अच्छा खासा टाइम मिलेगा हमारा खुद का पेपर चेक करने के लिए। और 1-2 क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं आते बहुत होने के बाद, तो फिर तो हम लोग ये लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पर। और अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए, सर मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, मेरा पेपर पूरा 90 का है, अभी और 1-2 मार्क्स मिले तो फिर अच्छा हो जाएगा स्कोर, नहीं आ रहा है, तो एक बात ध्यान रखना है कि चोरी करना पाप नहीं है इस वक्त के लिए, लेकिन पकड़े जाना बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले बार, बाय।